isolation, that people should notice him. So either you look sad, then you get attention of others, or you laugh unnecessary. हो जाए. A silent person, a person at peace, will be just silent, normal, isn't it? But if somebody is laughing, it means he is hiding something. हो जाए. Few people don't have this skill, that's all. They don't know how to hide their sorrow or their pain. And few people even on the contrary love it to show to others. हो जाए. मेरी बात समझ आई है? नहीं? तुम सुखी हो दुखी हो? Where is Prasanna? Prasanna passed away. I was going to define what is meditation, but it's not here. मिल गया मेरे को आज तक नहीं मिला. वो तो मैं मजाक कर रहा था. मतलब उनको आंसर मिल गया, उन्होंने सच मान लिया. मैं नहीं जानता ध्यान क्या होता है. Okay, what next? Is conscious is death. Conscious death. There is no death, how it can be conscious? He is joking all the time with you. Why you take so serious? He has written on his what you call grave or what samadhi, whatsoever. Good name, samadhi. I never born, never died. How it can be conscious? If he is talking about conscious death, it means he's joking. No, he is joking, Baba. Believe me, he is the one who has joked like anything. हो जाए. But you people have become so serious about it. I was also very, very serious. I was, I look like an ass. Ass you know, गधा. बड़ा गंभीर होता ना, सीरियस एकदम. Thinker, great thinker. I was like that. Now you see, I'm not serious because I understood his joke. It is his joke. There is no thing as such what you call death. So how it can be conscious? If you are asking the question, it means you believe that there is a death. You believe that there is a birth. Isn't it? But it is a belief. Believe means what? You don't know. If you don't know a thing, then you believe. Believe is an alternative to keep the truth in your hand. See, people believe in God.
Many, all of you maybe. You believe in God, but you ever met God? When you met God, then you know God, then there is no belief. Okay. See, now you go back home. Day after tomorrow it will be finished. Then you tell people that we met one person, his name is Gurudev, this and that, and he was like this and he was like this. So they will start believing in me, though they have not seen me, not heard me, not know me. Now, you believe in me or you know me. You are confronting me since 6, 7 days, isn't it? So, do you believe in me or you know me? You know me, isn't it? So, believe means you don't know. You don't know. You can believe in either way, in a positive way or in negative way. You can say there is no God, but you have not searched. You have not searched. You have not tried anything. You just believe. So there is a section of people in communist country, they believe there is no God. In India, in many parts, there are people who believe in God, but both don't know anything about God. Oh yeah, it is a belief, sir. My work now is to destroy your beliefs. You can say, I am starting it from this very camp. I am not going to entertain your belief system. And wherever I find you in a belief system, I will break it. So, first thing, do you believe that there is a death? How you can say, you have to prove first that there is a death. Otherwise, it is a belief. If you have experienced death and then you come back and tell me that I died and I experienced death and this is death, then it is not a belief. Then you have gone through the experience and you know. And again, you cannot say it was death because you are telling me the story. Then it was not a death. Oh, yeah. When you come and tell the story that I was died, then who the hell you are who is telling me that you died? If you died, then why you have come back? It means you never died. It means you never died. So one of the thing he is telling right, one of the thing he is telling joke. So which one you approve? First one or this one? Second one. So there is no death. Investigate, meditate, go deep into it, and then you tell, then you ask. Then the question may disappear because then you have the answer yourself that there is no death. I'm not going to die. I was identifying with the body, which is not me. I was identifying with my mind, which is not me. I was identifying with this, with that, with that, with that. This is not with this was not me. So it means when the body goes, I am. When the body was not, I was. When the body will not be, I will not be. So I am not the body. So why to worry? Whatsoever appears, disappears. That is the law. What appears and disappears has no truth.
Truth is that which never appears and never disappears, which remains, which is emness, isness. So emness is your nature. When you were born, there was M. Who saw the whole childhood, who experienced the whole childhood? A helpless boy, infant. Then slowly, you became teenager. The emness was there, witnessing the teenager state, first infant state, then teenager, then you were young, then you are middle age, then you will be old age, witnessing all this. So emness is there, isn't it? If emness was not before you were born, then how you can born? सिंपल सर मोहन जी बात समझ में आती कि नहीं If there was no emness, then who was born? Somebody else. This emness, whenever, wherever it founds the climate, it takes the body. Body is nothing but कद्दू को क्या कहते हैं लौकी को pumpkin. This body is nothing but a pumpkin. हो जा हंसी गायब हो गई You may think you are so and so, but you are not more than lauki. Pumpkin. What you put in sambar? White. That is pumpkin. कन्नड़ में क्या बोलते हैं उसको सब मत बोलो एक बोलो कुपड़ुकाई अच्छा पहले हंस लो अब मैं जिससे पूछूंगा वो मेरे को बताएगा कन्नड़ में ठीक है क्या बोलते हैं कुम्बड़काई means pumpkin कुम्बड़काई sir my dear you may think you are this or that you have many identities but you are not more than kumbhkai shall I prove now I can prove it and not these people will agree you will also agree shall I prove then what about next game you want I should exhaust myself totally here this I keep for the next time a man has a big ego he thinks of himself too big but he is no more than a vegetable at least vegetable can be eaten you are not worthy of that even हो जाए you are totally useless एटलीस्ट वो कुम्बड़काई कुछ खा तो सकते हैं ना सांभर में डालते हैं मजा आता है इडली के साथ खाया डोसा के साथ खाया ये आदमी का क्या करोगे लेकिन इसकी हैसियत एक सब्जी से ज्यादा नहीं है मेरे को कुम्बड़काई की बजाय बैंगन कहना अच्छा लगता है बैंगन को क्या कहते हैं बैंगन आप समझते हो ना तो बैंगन बस आप लोगों की शक्लें भी वैसी हैं हो जाए कुम्बड़काई से ज्यादा बैंगन नजदीक पड़ता है मेरा मजाक बुरा तो नहीं लगता ना वैसे मैं गलत भी नहीं कह रहा
कुछ बैंगन का रंग जो है वो कम डार्क होता है, कुछ लोग वैसे भी हैं यहाँ पर। सफेद बैंगन भी होता है वैसे, थोड़ा लाइट कलर का होता है, कुछ डार्क कलर का होता है, कुछ मीडियम कलर का होता है। आदमी की हैसियत बैंगन से ज्यादा नहीं है। देखो ये शरीर किस चीज से बना है? दिस बॉडी इज मेड ऑफ व्हाट? ये किससे बना है? अगर तुमने बैंगन नहीं खाया होता तो ये शरीर बनता क्या? बैंगन मीन्स भोजन। ओके, टेक इट एज ए भोजन। बैंगन, गेहूं, चावल, ये सब्जी, वो सब्जी, मूली, गाजर, सब चीजें, ये सब क्या है? शाक भाजी। ये शाक भाजी खाते रहते हो तो ये शरीर बनता रहता है, बराबर। तो ये शरीर जो है भोजन से बना है, बराबर। अगर इसको भोजन नहीं मिले तो क्या होगा? द स्टोरी इज फिनिश्ड। मजे की बात यह है कि ये शरीर भोजन से बना है और भोजन पर टिका हुआ है। दिस बॉडी इज सस्टेन्ड थ्रू द फूड एंड इज मेड ऑफ फूड, इजंट इट? समझो, हम इससे पहले चलते। तुम्हारे माता पिता ने बैंगन खाया, मतलब समझ जाना, मेरे कहने का मतलब समझ जाना। माने उन्होंने जो भोजन किया उससे जो रस बना। माता और पिता जब प्रेम में थे तो उस भोजन का सार तत्व मां के पेट में बढ़ने लगा। मां के पेट में भी बढ़ने लगा क्योंकि मां भोजन खा रही थी। मां अगर भोजन नहीं खाती तो तुम तो विदा हो ही जाते, वो भी विदा हो जाती। ठीक नहीं कह रहा बात? आप लोग राजी हो इधर वाले? ठीक कह रहा हूं ना? देखो हम बड़ा सीरियस लेते हैं चीजों को, बड़ी बड़ी फिलॉसफी घड़ लेते हैं। चीजें कितनी सिंपल हैं, यह जरा नजारा देखो उसका। आज चीजें कैसी हैं? माता पिता ने अगर भोजन नहीं किया होता तो तुम यहां पर नहीं होते, मुझे भी 6 दिन की छुट्टी मिल जाती। तुम तुम्हारे माता पिता के खाए हुए भोजन का परिणाम हो। एम आई राइट? फिर जब तुम मां के पेट से बाहर आ गए तो दूध पीते रहे मां का, जो कि भोजन से फिर निर्मित हो रहा है। मां अगर भोजन नहीं खाए तो दूध नहीं पिलाए, फिर धीरे धीरे तुम दूध से आगे बढ़े, कुछ कुछ और भी खाने लगे, कुमड़ा वुमड़ा, बैंगन वैगन, तुम सीधा ही खाने लगे। आज बैंगन खा खा के तुम इतने बड़े हो गए, हो गए। बड़ी अकड़ है, बड़े सीरियस हो के हम ओशो के सन्यासी और कुंडलनी और डायनामिक। अब एक बैंगन अगर ध्यान करेगा तो वो कुछ भी कर ले, बैंगन ही रहेगा, हो जाए। ऐसा सत्संग आपको कहीं अवेलेबल होने वाला नहीं है, नोट कर लो, है ना? ये शरीर भोजन से बना है, भोजन पर टिका हुआ है। और मजे की बात यह है कि ये भी भोजन ही है। अगर तुम शेर के आमने सामने हो जाओ तो तुम उसका भोजन हो जाए, है कि नहीं? तो बाबा तुम वेजिटेबल से ज्यादा हो, भोजन हो ना तुम एक शेर के लिए एक बैंगन हो। इसलिए बहुत अकड़ने की जरूरत नहीं है। देखो सारे ध्यान का कुल अर्थ है अपने अहंकार से बाहर आना, है ना? अपने अहंकार को समझना। अहंकार ही बाधा है। तो मेरी बातचीत से ही उसको मैं किनारे कर रहा हूं, वो तुम्हें लाइट कर रहा हूं। ये अहंकार में विचार करो कि तुम क्या हो,
तुम कौन हो। अगर तुम समझते हो कि तुम देह हो तो देह पर विचार करो कि ये देह क्या है, किसको मैं इतना सजाता रहता हूँ, इसके लिए इतना मरता खपता रहता हूँ, क्या क्या मैं नहीं करता। विचार करो। देयर इज नो नीड टू बी गेट डिप्रेस्ड, जस्ट सी प्रॉपरली, think properly, meditate properly, and you will have a different conclusion altogether. This body is nothing more than a vegetable. If I am not right, you tell me. जब मैं टीवी देखता हूं तो मेरी एक बुरी आदत है, मैं जिसको देख रहा हूं टीवी पे, समझो किसी को देख रहा हूं, तो मेरे को अचानक जो है ना कोई वेजिटेबल दिखाई पड़ जाती है जिससे उसका चेहरा मेल खाता है, हो जाए। मनीष बैठा है, योगिनी बैठी है, तन्मय को पता नहीं है। इट आइडेंटिफाइज एग्जैक्टली द, उस टाइम जो मुझे याद है, कोई फ्रूट याद आ जाता है, कोई वेजिटेबल, कोई गांठ गोभी, कोई फूल गोभी, कोई बैंगन। अब आपके कन्नड़ शब्द अलग होते हैं, कोई शलगम, शलगम को क्या कहते हो आप? एक सफेद सफेद होता है, ठस, खाते हो, वो भी इसमें पड़ता होगा कहीं ना कहीं सांभर में। सांभर में कोई चीज है जो आप नहीं डालते? एक खास तरह का घोल तैयार किया, उसमें सब डाल दिया। मैं कहीं भी साउथ इंडियन खाना खाऊं, माने कहीं भी भारत में, वहां पर वो लिखा होता है नॉर्थ इंडियन फूड, होटल तो साउथ इंडियन होता है, वो नॉर्थ इंडियन फूड भी साउथ इंडियन ही लगता है। क्योंकि उनका एक ही मसाला, एक ही ढंग है, बस वो एक ही मसाले में बैंगन डाल दिया तो बैंगन भरता हो गया, मिक्स वेजिटेबल डाल दी तो मिक्स, मसाला एक ही होता है। लेकिन एक्चुअली नॉर्थ इंडियन फूड ऐसा नहीं होता, वो टोटली डिफरेंट होता है हर आइटम। पर तुम साउथ इंडियन होटल में जाके नॉर्थ इंडियन फूड खाओ तो उसका टेस्ट साउथ इंडियन ही होता है, हो जाए। एनीवे, दिस इज जस्ट टू बी light, because when you become serious, energy never goes deep. I don't mean don't remain sincere, you have to be sincere, committed, focused, together. That is a different thing. But when you become serious, then you go on a wrong journey. ये शरीर जो है, इसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, इसका एक ही मूल अर्थ है कि हूं इसमें प्रकट है, हूं इसमें कन्फ्रंट की जा सकती है, उसका सामना कर सकते हो, इस हूं को जान सकते हो, पहचान सकते हो, ये देह में ही संभव है। विदाउट द बॉडी, भैंस जो है या कोई भी जानवर, कोई भी जंतु सेल्फ अवेयर नहीं हो सकता, मनुष्य हो सकता। यही इसका मूल मकसद है देह में होने का, कि यू, इफ यू लाइक, इफ यू वांट, इफ यू हैव द डिजायर, then you can know who you are, what you are actually, not what you believe. तुम मानते हो कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हारी बहुत मान्यता है, एंडलेस। अगर हम चर्चा करनी चालू करें तो उसका अंत ही नहीं आता। कहीं तुम बाप हो, कहीं तुम बेटे हो, कहीं तुम चाचे हो, कहीं भतीजे हो, कहीं मामे हो, डॉक्टर हो, ये हो,
पुरुष हो, स्त्री हो, भारतीय हो, कन्नड़ हो, पता नहीं कितनी आइडेंटिटी है, और इनमें से तुम कोई भी नहीं हो जाए। दिस इज ऑल फंक्शनल, यूटिलिटेरियन। व्यवहार करने के लिए ठीक है। तुम अगर पंजाब पहुंच जाओ तो तुमसे पूछेंगे कहाँ से आए हो, तो कहना कि कन्नड़ प्रदेश से आया हूँ, कर्नाटक से आया हूँ, इट्स ओके। बट तुम कर्नाटकी हो ऐसा कुछ है नहीं, कन्नड़ जैसी कोई जगह ही नहीं है, कर्नाटक जैसी कोई जगह है ही नहीं। अगर है तो दिखाओ मेरे को। ये सब काम चलाऊ झूठ है। These are utilitarian lies, functional lies. It is okay. Don't disturb them, but don't believe in them. If you believe, then you तुम शरीर हो, बोलो, जवाब दो, चलो। जब तुम कहते हो मैं, क्या नाम है आपका? ईश्वर। हाँ हाँ, ईश्वर जी। अच्छा हंस लो, चलो, बड़ी देर हो गई है ना। When we say when I say I, what I mean? सोचो, what do you mean when you say I? The source which is running in the body. Don't cheat yourself. Hmm? Exactly, you mean that this body. Suppose somebody comes and slaps you, then immediately you slap him. Why? Because you think you are this body and he has slapped you, not the body. If you are not the body, then he slapped the body. Then you must keep quiet. Simple. बुद्ध के पास लोग आए, उन्होंने आके उस पर थूक दिया, किसी ने आके, उन्होंने रुमाल उठाया, पहुंच के बैठ गया ऐसे। Why? Why? Because he knows that he is not the body. लेकिन अगर आप पर कोई आके थूक दे तो आप क्या करोगे? ये भूल जाओगे कि जो मैं कर रहा हूं उसके बदले में मेरे को फांसी हो सकती है। भूल जाओगे ना, ये भूल जाओगे उस वक्त, छोड़ोगे नहीं उसको। मुझ पर थूका, तुम ये नहीं कहोगे कि मेरी बॉडी को गंदा किया, मेरे मुंह को गंदा किया। चलो इतना भी तुम कहो तो ठीक है कि मेरे मुंह को गंदा कर दिया। अगर थूकना ही था तो यहां थूकता, यहां क्यों थूका? नहीं, उस वक्त ये याद नहीं आएगा। देखो, you always say my body is paining, my body is tired, my body is hungry, my body is thirsty. कहते हो ना कि नहीं कहते? जो भी मेरा है, whatsoever is mine is not me. This is a simple logic. Am I right or not? Now I have this handkerchief. I say this is my handkerchief. So it does not mean that handkerchief is me. Does it mean? कहते हो ना, जब घुटने में दर्द होता है तो कहते हो घुटने में दर्द है, ये थोड़ी कहते हो कि मुझे दर्द है, कहते हो? Now body is discarded through a simple logic that whatsoever I possess is not mine. तुम कहते हो मेरा मन बड़ा दुखी है, कहते हो कि नहीं कहते? तो मन भी मेरा है, मैं नहीं हूं। शरीर भी मेरा है, मैं नहीं हूं। भावना मेरी है, मैं नहीं हूं। इच्छा मेरी है, मैं हूं। संवेदना मेरी है, मैं नहीं हूं।
जो जो चीज मेरी हो वो मैं नहीं हूं। सिंपल। बहुत देर लगा रहे हो गर्दन हिलाने में, क्या बात है? अगर ये जानना हो कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, तो उस सब को विदा करना पड़ेगा जो मैं नहीं हूं। सब चीज अलग करते जाओ। मान लो तुम में से कोई डॉक्टर है, तो वो ये समझता है कि मैं डॉक्टर हूं, तो क्या सच में तुम डॉक्टर हो? उससे पहले क्या थे? अब तुम डॉक्टर हो गए। कल को तुम डॉक्टरी छोड़ के दुकानदार हो जाओगे, फिर तुम दुकानदार कहोगे मैं दुकानदार हूं। तो ये जानो कि डॉक्टर होना, दुकानदार होना, वकील होना एक पेशा है। इट्स नॉट मी। वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द रियल मी। वस्तुतः मेरा स्वभाव क्या है, वस्तुतः मैं कौन हूं, ये जानना शरीर में ही हो सकता है। यही शरीर में होने का लाभ है और यही शरीर में होने का प्रयोजन है। परमात्मा गया पहाड़ में, पता नहीं कहीं होगा कि नहीं होगा, क्या है क्या नहीं है, सुनी सुनाई बातें हैं। पर यह सुनी सुनाई बात नहीं है कि मैं हूं। ये सुनी सुनाई बात है। मैं आके आपको बताता हूं कि आप हो, कि आप जानते हो कि आप हो। आप जानते हो ना कि आप हो? बोलो ना। यू नो दैट यू आर। You don't know, you don't need me to tell you that you are, isn't it? But all the time, you are escaping from yourself, isn't it? हर वक्त भागे हुए हो अपने से। जब और कुछ नहीं भागने को मिलता, तो 6 दिन का कैंप कर लेते हो जाए। See, this too is a escape in real sense, but you are escaping yourself. So I know for what you have come, and I am the only one who is doing the right thing, not you people. तुम यही जानना चाहते हो ना कि तुम कौन हो, और मैं तुम्हें बार बार उसी की ओर धकेल रहा हूं कि सारे राज खुल जाएंगे, इस हूं को पकड़ लो। इस हूं का संग साथ करो। ये सच्चा ओशो है, ये सच्चा सदगुरु है। कौन? स्वयं के होने का भाव। You know that you are, this feeling is constant with you while you are awake. It never leaves you. You forget it, but it always waiting there. ये हूं सतत तुम्हारे साथ ही है। पत्नी छोड़ के भाग जाए, कोई मर जाए, कोई कुछ हो जाए, लेकिन ये हूं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। बोलो छोड़ता? लेकिन तुम कभी भी इसको देखते हो 2 घड़ी? कभी इससे प्यार किया? ये तुम्हारा सदगुरु है, ये है ओशो। इससे प्रीति करो। तुम ओशो से प्रीति कर रहे हो, इससे प्रीति करो, तुम सदगुरु के साथ जुड़ रहे हो। स्वयं से जुड़ना, सदगुरु से जुड़ना। किताबें पढ़ लेना, टेपें सुन लेना, कुंडलनी कर लेना, डायनेमिक कर लेना, उससे तुम ओशाइट्स नहीं होते। ओशाइट्स होना है तो इस हूं में खड़े हो जाओ। बिसरइयो मत इसको। ये बिसरे नहीं, ये भूले नहीं। मेरा एक म्यूजिक है, बिसरइयो ना ओशो हमार सुतिया।
कि हमें ऐसा बोध दो कि हम आपको नहीं भूलें। आपको नहीं भूलें का मतलब है स्वयं को नहीं भूलें। ओशो मीन्स स्वयं की सत्ता। ओशो इज नॉट ए पर्सन। You think you are a person, that is why you project yourself on him and you think that he is a person, but he is a Sadguru, he is this, he is that, but it is all assumption. ये सब मान्यता है, ये धारणा है. If you want to know what real Osho is, just this emness, remember it again and again, again and again, again and again, day and night. This should become your only sadhana. Go on doing dynamic Kundalini. I am not saying stop it. Don't misunderstand me, sir. Do. That will also help you to remember. But keep in mind that this is the main. What is the main? Emness. To be one with. To remember that feeling, that sensation, which is all the time there, at least in the waking state. Remember it again and again. And you will see it is arduous, कठिन है. कोई बात नहीं, कठिन है तो क्या हुआ, करेंगे यात्रा, चढ़ेंगे पहाड़ पे. ये पहाड़ तुम्हारे भीतर ही है. स्वस्मरण, सेल्फ रिमेंबरिंग, मैं हूं. ये पहले याद करो मैं हूं, मैं को छोड़ दो, हूं को होल्ड करो. जस्ट होल्ड. This is pure meditation. This is pure emness. This is your true nature. It will reveal everything. जैसे जैसे इसका प्रकाश फैलेगा, चीजें अपना आप बदलती जाएंगी. Something more? Actually, in search of the matters, it has been told about 7 bodies: physical, etheric, and ultimately the last demonic body. And meditation, as I understood, is that not getting identified with the body, mind, or emotions, and it's beyond this, and not able to relate the two actually. When we say going beyond body, and we say that there are 7 bodies, what is that? How to relate with these? It is just a joke, Baba. हो जाए. अगर वो 7 शरीर नहीं बताएं तुम्हें मजा ही नहीं आता. तो तुमको हुक करने के लिए बोल दिया कि 7 बॉडी, 7 चक्र, पहले ऐसे ध्यान करो फिर वैसे करो. पर ध्यान करने वाले पर तुम ध्यान क्यों नहीं करते? कौन है वो ध्यान करने वाला? उसी पर करो ना सीधा बाबा. सीधा उसी को याद करो ना. हूं जो है 8th बॉडी है. ओशो ने 7 शरीर बताया ना. मैं तुमको 17 बता सकता हूं और प्रूव कर सकता हूं. हो जाए. तुम क्यों चक्कर में पड़ते हो? तुम सीधे घर बैठे हो और तुमको लगता है कि तुम कहीं पहुंच गए. तुम कहीं नहीं पहुंचे, तुम वहीं के वहीं हो. तुम सिर्फ याद कर रहे हो कि तुम वहीं हो. कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ अभी भी होता है. ठीक है, ये यहां पर होता है. मनीष कुछ प्रिंट करके लाएगा, प्रिंट आउट के ये लेटर आया है, तो मैं कहूंगा जरा मेरा चश्मा देना. कई बार वो ढूंढने लगता है. मैं कहता हूं वो बेड के पास होगा, तो बेड के पास चला जाता हूं.
अचानक मेरे कान में खारिश होती है, मैं हाथ लगाता हूं तो इस पे हाथ लग जाता है, तो लगता है ये तो वहीं का वहीं है। जिस चीज को तुम खोज रहे हो वो कहीं नहीं है बाबा, वो वहीं है। कहीं है क्या? जहां पर हूं है वहां तुम नहीं हो। हूं कहीं है, तुमको वहां पहुंचना, ये हर कहीं है। तुम जहां चले जाओ ये तुम्हारे साथ है, यही तो एक दोस्त है। ये हूं है जो देखता रहता है। कहते हैं ना परमात्मा की बहुत आंखें, हर जगह उसकी आंख लगी हुई है। एक महिला थी क्रिश्चियन, वो जब नहाने जाती थी बाथरूम में तो कपड़े नहीं उतारती थी। कपड़े पहन के नहाती थी। क्यों? परमात्मा देख लेगा। ये हूं ही वो परमात्मा है, तुम कुछ भी कर लो वो तुम्हें देख ही रहा है। वो हर घट, तुम उसे देखो कि इसकी जरूरत है, वो तो तुम्हें देख ही रहा है। तुम उसके बिना हो ही नहीं सकते। हो सकते? सोचो जरा, हो सकते? हूं के बिना हो सकते? लोग कहते हैं कि परमात्मा कहाँ है, दिखता क्यों नहीं? अब तुम नहीं देखना चाहो तो बात अलग है। मेरी आंख से तो तुम देखोगे नहीं, देखना तो अपनी आंख से पड़ेगा। तो देखो, हूं को देखो। हूं को देखने का अर्थ है हूं को याद करना। इट इज ए फीलिंग, very slippery in the beginning, in the beginning. But if you are after it, slowly, slowly, you will have a friendship. आधी यात्रा तुम्हें करनी है, आधी बाद में वो सहायता करेगी। तुम उसकी तरफ हाथ ही नहीं बढ़ाते। सेल्फ रिमेंबरिंग, remember your emness, stay put there, don't leave, and all the blessing will shower on you. Okay?